دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 328 ریکارڈ۔ شہر میں فضائی آلودگی بے قابو، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 328 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ ڈیفنس فیز 8 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 372، سید مراتب علی روڈ 313، جوہر ٹاؤن 311، مال روڈ پر 300 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر غریب طبقے کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ درجنوں یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے اور چینی کے سٹاک موجود نہیں۔ غریب طبقہ سامان کی آس لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ شہر بھر کے درجنوں علاقوں گڑی شاہو، رام گڑھ، دروغہ والا، جی ٹی روڈ، مناوا، شادمان، دھرم پورہ سمیت متعدد علاقوں میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور چینی دستیاب نہیں۔ اسی طرح الطاف کالونی، رینجرز ہیڈ کوارٹر، غازی آباد، نظام آباد، تاج پورہ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹا موجود نہیں۔ کم آمدنی والا طبقہ آٹے اور چینی کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر خوار ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر حکومتی سٹوروں سے غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان میسر نہیں تو ان سٹوروں کو بند کر دیا جائے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں سال 2024 سے نمبرز ختم، گریڈ سسٹم کو بحال کر دیا۔ امیدواروں کو رزلٹ کارڈز پر گریڈز کے ساتھ CGPA دیا جائے گا۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ نئے طریقہ کار سے مقابلے کی فضا پیدا ہوگی اور تصوراتی تعلیم کو فروغ ملے گا۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں سال 2024 سے نمبرز ختم کر کے گریڈ سسٹم بحال کر دیا گیا ہے۔ آئندہ سال امیدواروں کو رزلٹ کارڈز گریڈ سسٹم کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ گریڈ کے ساتھ CGPA بھی دیا جائے گا۔ IBCC کے 27 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں گریڈنگ سسٹم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب بورڈ سندھ میں واقع تعلیمی بورڈز کو گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے ٹریننگ فراہم کریں گے۔ رواں سال رزلٹ کارڈز میں نمبرز کے ساتھ گریڈز بھی جاری کیے گئے تھے۔ آئندہ تعلیمی سال سے صرف گریڈز اور CGPA ہی جاری کیے جائیں گے۔ طلباء نے حکومتی فیصلے کو خوش آئندہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے نقل کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات، آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کامیاب۔ میاں عبدالقدوس کا دوسرا نمبر۔ لاہور رجسٹری میں 1073 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ شوکت شہزاد نے 613 ووٹ حاصل کیے۔ میاں عبدالقدوس کے پلڑے میں 452 ووٹ آئے۔ دیگر شہروں میں بھی آسما جہانگیر گروپ کا پلڑا باری رہا۔ نو منتخب صدر شہزاد شوکت کے حامیوں کا جشن۔ سپریم کورٹ بار کے 5 عہدوں کے لیے 20 امیدواروں میں مقابلہ ہوا۔ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کو انڈیپینڈنٹ گروپ جبکہ ان کے مد مقابل عبدالقدوس کو پروفیشنل گروپ کی حمایت حاصل تھی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل پرامن طور پہ جاری رہا۔ آسما جہانگیر گروپ کے رہنما اعظم نذیر ریٹائرڈ، احسن بون، حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر سینئر وکلاء ووٹرز وکلاء سے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کے لیے رابطے کرتے دکھائی دیے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی، سابق صدر سپریم کورٹ بار اعتزاز احسن، حامد خان، احسن بون، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری، صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق خان، سابق صدر ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان، عابد ساکی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبدالرحمان سمیت کئی سینئر وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کو کامیاب قرار دیا گیا۔ خوشی میں حامی وکلاء نے انہیں پھول پہنائے اور حق میں نعرے بازی کی۔ نو مرتبہ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بار کے وکلاء کی خدمت کرتا رہوں گا، آئین کی حکمرانی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سرے منہ انحراف نہیں ہونے دے گی۔ ہم پوری طاقت سے آئین کی بالادستی کی حفاظت کریں گے۔ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ کی جانب سے سپریم کورٹ بار کے حتمی نتائج کا اعلان 3 نومبر کو کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42 کو بجلی چوروں سے بلوں کی وصولی کرنے میں ناکام ہونے لگی۔ وفاقی حکومت کی انسداد بجلی چوری مہم میں مقدمات درج ہونے کے باوجود 2 ماہ کے دوران 1 ارب 35 کروڑ روپے کی ریکوری نہ ہو سکی۔ وزارت
भारत पावर डिवीजन और पुलिस की मुआवनत होने के बावजूद बिजली चोरों से वाजिबात वसूल नहीं कर सके। डिटेक्शन बिलों की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए के वाजिबात की वसूली नामुमकिन हो गई। लेस्को ने 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की डिटेक्शन बिल चार्ज किए थे। ताहम मुहिम के दौरान डिटेक्शन बिलों की रिकवरी सिर्फ 53 करोड़ रुपए की जा सकी। लेस्को ने बिजली चोरों को पकड़कर रिकवरी के बजाय डिटेक्शन बिल चार्ज करने पर फोकस किया। मजमूई तौर पर 21,210 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए गए। मुकदमात की बुनियाद पर 10,897 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बिजली चोरों की मुआवनत करने पर 42 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में मौजूद मखदूश हालत वाले क्लासरूम्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने स्कूलों में मौजूद मखदूश हालत वाले क्लासरूम्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अहकामात की खिलाफ वर्जी या गफलत पर मुतालिका इदारे के सरबराह जिम्मेदार होंगे। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में 205 स्कूलों में खस्ताहाल इमारतों में सैकड़ों खतरनाक कमरे मौजूद हैं। लाहौर के 4 स्कूलों में दर्जनों कमरों को खतरनाक करार दिया जा चुका है। असातिज़ा का कहना है कि लाहौर की अक्सर सरकारी स्कूलों की इमारतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। असातिज़ा का मजीद कहना है कि क्लासरूम्स की हालत बहुत खराब है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। बेशतर स्कूलों में 50 साल पुराने कमरे भी मौजूद हैं। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल का गढ़ बन गया। सोएवाला रोड और गजुमता के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम मियां चौक कच्चा जेल रोड की हालत भी अबतर हो गई। गजुमता का इलाका सोएवाला रोड मसाइल की आमाजगाह बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। गलियों की हालत अबतर हो गई। नकारा सीवरेज निजाम, खुले मेनहोल्स, जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। इलाके में उठते ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। बाजी गुजरते हैं, हमारी माएँ बहनें गुजरती ये बाजार से, जब बारिश पड़ती है तो बहुत बुरा हाल होता है, गुजरा नहीं जाता। मियां चौक कच्चा जेल रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पैदल चलना भी मुहाल हो गया। रिहायशियों ने इंतजामिया से रोड की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। फारूकाबाद भट्टा चौक में बेहंगम तारे मकीनों के लिए वबाले जान बन गयी। मुतादिद गलियों में लटकती तारे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहले इलाका का कहना है मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कादरी चौक ग्रीन टाउन की सड़क भी हाल से बेहाल हो गई। सड़क किनारे टूटी रोड के मलबे और गंदगी के अंबार लग गए। बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों के कारोबार भी तबाह होने लगे। गंदगी के बायस ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। अहले इलाका ने इंतजामिया से सड़क की जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाने की फरियाद कर दी। इनकारी बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने पर डीसी लाहौर पर हम टीमों को वापस फील्ड में भेज दिया। कैंट में 12 रेफ्यूजल रेट पर डीडीएचओ कैंट से जवाब तलब कर लिया। पोलियो के पहले रोज 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम के दौरान इनकारी बच्चों को कतरे पिलाए बगैर फील्ड से क्यों निकले? डीसी लाहौर गुस्से में आ गईं। डीसी लाहौर ने फौरी पोलियो टीम को इजलास से वापस फील्ड में भेज दिया और एसी टीम को टीम की मदद करने की हिदायत कर दी। एक तहसील में 10 रिफ्यूजल केस को फौरी कवर करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, एसीज, सीसीओ हेल्थ, डीडीएचओज, WHO नुमाइंदगान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में डीसी लाहौर राफिया हैदर को पहले रोज की कारकर्दगी के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैंट के इलाके में 12 रिफ्यूजल केसेस पर डीडीएचओ कैंट से जवाब तलब कर लिया गया। पोलियो मुहिम के पहले रोज नाकिस कारकर्दगी पर डीडीएचओ समनाबाद डॉक्टर फरीद से भी जवाब तलबी की गई। तायुनातियों में मुबैना बेज़ाब्तगी पर नैब इन एक्शन नैब लाहौर ने सोशल सिक्योरिटी से जून 2022 के बाद तमाम सेक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खसूसी तौर पर अद्वियात की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड डायरेक्टर परचेज से तलब किया गया। हेड ऑफिस ने मनपसंद अफराद को बचाने के लिए नोटिस न लिया। ज़राए के मुताबिक हेड ऑफिस की मुसलसल हट धर्मी के बाद नैब लाहौर ने रिकॉर्ड तलबी शुरू की। अद्वियात की खरीदारी में बेज़ाब्तियों के बायस सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस ने मनशियात फरोशी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की 66 किलोग्राम मनशियात बरामद कर दी गई है। मनशियात फरोश जो हमने पकड़े, जिनसे हमने हैवी मिकदार में ये तकरीबन 1.5 मन से भी ज़्यादा अफीम, चर्स और आइस बरामद की गई है। इसमें एक खातून भी शामिल है। शमीम अख्तर साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है मनशियात की। इसको थाना लोयर माल में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया और इसके कब्जे से 12 किलो
अफीम बरामद हुई। दूसरा काशिफ नवाज जो कि दीपालपुर ज़िला उकाड़ा का रहशी है, ठोकर न्याज बेग से लेके अली टाउन तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को मनशियात भेजता था। कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में दोबारा MD-CAT देने वाले उम्मीदवारों के लिए पंजाब में दाखिला पोर्टल खोलने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी सेहत अली जान की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल कॉलेजेस के लिए सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। सूबाई दाखिला कमेटी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में MD-CAT के दोबारा इनेकाद के बायस दोबारा इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए पंजाब में MBBS और BDS का एप्लीकेशन पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया। इजलास में बताया गया कि सिंध और KPK में MD-CAT में नकल के बाद टेस्ट का दोबारा इनेकाद 19 नवंबर को होगा, जिसका नतीजा आने पर दोनों सूबों में MD-CAT इम्तिहान देने वाले वो उम्मीदवार जो पंजाब के डोमिसाइल के हामिल हैं दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आम इंतखाबात और पीपल्स पार्टी पंजाब की एग्जेक्टिव कमेटी के होने वाले इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि इजलास की सदारत वस्ती पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा ने की। इजलास में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब स्पोर्ट्स विंग के नायब सदर मियां अतीक, शहीम सफ्तर एडवोकेट और जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुदस्सर शाकिर समेत दीगर ने शिरकत की। शहजाद सईद चीमा का कहना था, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इलेक्शन शेड्यूल जमहूरी तसलसल के लिए आईनी तकाजा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता 2 माह से यही कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब के 22 तहसील हेडक्वार्टर हस्पतालों की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। मज़ीद 49 तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पतालों की बेहतरी का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ने कहा कि छोटे शहरों और देहात में वाक़या 1645 बुनियादी मराकज़ सेहत को 24 घंटे मरीजों का इलाज करने का हुक्म दे दिया गया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास जराइम की सूरत हाल, तिजारती मराकज़, हसास मकामात के सिक्योरिटी इंतजामात समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में मुनक़दा इजलास में SSP ऑपरेशंस अली रजा, SP सिक्योरिटी, SP हेडक्वार्टर्स, SP डॉल्फिन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात, जराइम की सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। DIG ऑपरेशंस ने तालीमी इदारों, सरकारी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का भी जायज़ा लिया। अली नासिर रिजवी ने इश्तिहारी मुजरमों, अदालती मफरूरान, मनशियात फरोशों और जराइम पेशा मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया है, जबकि उन्होंने कहा कि शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने और 15 कॉल्स पर बर वक्त रिस्पांस देने की हदायत जारी कर दी है।